हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। 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 Try. Yasyam, this Vedic literature. Why? Certainly. Shriyamanayam, simply by giving oral reception. Krishna, unto Lord Krishna. Parama, supreme. Purushe, unto the personality of Godhead. Bhakti, feelings of devotion service. Utpadyate, sprouts up. Pumsaha, of the living being. Shoka, lamentation. Moha, illusion. Bhaya, fearfulness. Apaha, that which extinguishes. Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling of loving devotion service to the Supreme Lord, the Supreme Personality Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. Yes, Rita Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। Purport by Srila Prabhupada. There are various senses of which the ear is the most effective. This sense works even when a man is deep asleep. One can protect himself from the hands of an enemy while awake, but while asleep, one is protected by the ear only. The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life, namely getting free from three material pangs. Everyone is full of lamentation at every moment. He is after the mirage of illusory things and is always afraid of his supposed enemy.
These are the primary symptoms of material disease. And it is definitely suggested herein that simply by hearing the message of Srimad Bhagavatam, one gets attachment for the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. And as soon as this is affected, the symptoms of the material disease disappear. Srila Vyasdev saw the all perfect personality of Godhead. And in this statement, the all perfect personality of Godhead, Sri Krishna, is clearly confirmed. The ultimate result of devotional service is to develop genuine love for the Supreme Personality. Love is a word which is often used in relation with man and woman, and love is the only word that can be properly used to indicate the relation between Lord Krishna and the living entities. The living entities are mentioned as Prakriti in the Bhagavad Gita, and in Sanskrit, Prakriti is a feminine object. The Lord is always described as the Parama Purush, or the supreme male personality. Thus, the affection between the Lord and the living entities is something like that between the male and the female. Therefore, the term love of Godhead is quite appropriate. Loving devotional service to the Lord begins with hearing about the Lord. There is no difference between the Lord and the subject matter heard about him. The Lord is absolute in all respects, and thus there is no difference between him and the subject matter heard about him. Therefore, hearing about him means immediate contact with him by the process of vibration of the transcendental sound. And the transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all material affections mentioned above. As mentioned before, a living entity develops a sort of complexity by material association, and the illusory engagement of the material body is accepted as an actual fact. Under such false complexity, the living beings under different categories of life become illusioned in different ways. Even in the most developed stage of human life, the same illusion prevails in the form of many isms and divides the loving relation with the Lord, and thereby divides the loving relation between man and man. By hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed, and real peace in society begins, which politicians aspire for so eagerly in so many political situations. The politicians want a peaceful situation between man and a nation and nation, but at the same time, because of too much attachment for material domination, there is illusion and fearfulness. Therefore, the politician peace conferences cannot bring about peace in society. And it can only be done by hearing the subject matter described in the Srimad Bhagavatam about the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. The foolish politician may go on holding peace and summit conferences for hundreds of years, but they will fail to achieve success. Until we reach the stage of re-establishing our lost relation with Krishna, the illusion of accepting the body as the self will prevail, and thus fearfulness will also prevail. As for the validity of Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, there are hundreds and thousands of evidences from revealed scriptures, and there are hundreds and thousands of evidences from personal experiences of devotees in various places like Vrindavan, Navdeep, and Puri. Even in the commentary dictionary, the synonyms of Krishna are given as the son of Yashoda and the Supreme Personality of Godhead, Parabrahma. The conclusion is that simply by hearing the Vedic literature, Srimad Bhagavatam, one can have direct connection with the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, and thereby one can attain the highest perfection of life by transcendenting worldly miseries, illusions, and fearfulness. These are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the readings of the Srimad Bhagavatam. Hare Krishna Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. When we read, at least we are hearing. Anna, we feel so nice. Okay. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादिपाशातदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling of loving devotion service to Supreme Lord, to service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of limitation, illusion, and fearfulness. Hare Krishna. Now this is, अभी हम देख सकते हैं कि वेद व्यास जी समझ रहे हैं। उन्होंने, नारद जी ने उनको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट है कौन किसको बोल रहा है। अभी बताओ भाई, ये जो श्लोक है किसने किसको बोला है? सूत गोस्वामी ने, नैमिषारण्य ऋषि। सूता गोस्वामी बोल रहा है। यस, किसको बोल रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को। परफेक्ट। बहुत सारे ऋषि, उनमें लीडर हैं, शौनक ऋषि उनके लीडर हैं। ठीक है। और क्यों बोल रहे हैं? अभी भागवत का महात्म्य चल रहा है। वो इंस्टेंस बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ही दुखी थे, सारे वैदिक लिटरेचर लिखे, तो नारद मुनि उनको शिक्षा दी। नारद मुनि की शिक्षा देने के बाद वेद व्यास जी दोबारा ध्यान से भगवान में ध्यान लगा के बैठे। भगवान का दर्शन हुआ, माया उनके अधीन दिखी, सारे जीव तड़पते दिखे माया में, और भक्ति योग करके आराम से लोग निकल सकते हैं। अब भागवत के बारे में बताया, तो कितनी सुंदर भागवत है। इसको अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उसका आशीर्वाद देखो, उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो ABCD है हमारा गीता का ज्ञान की प्रेम खाली भगवान से रिश्ते को बोला जाता है। ये दुनिया में जो हम प्रेम बोलते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये काम है। ये हमारे लेवल 1 में हम सिखाते हैं। जैसे कोई लड़का लड़की को देखता है, क्या बोलता है? एक सुंदर लड़की को देखता है तो उसको जाके बात करने का मन करता है, छूने का मन करता है ना? अगर बोलेगा मैं प्यार करता हूँ तो लड़की तो थप्पड़ मार देगी। नहीं, अगर वो जाके छूने का कोशिश करता लड़की थप्पड़ मारेगी, तो क्या बोलेगा? उसको जाके बेवकूफ़ बनाता है, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो? मैं काम करता हूँ, मेरे को काम हो गया, प्यार हो गया है। आई लव यू की जगह सीधा बोलना चाहिए, स्पष्ट आई लस्ट, है ना? लव एंड लस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है। लव होता है जब आप किसी आदमी को सुखी करना चाहते हैं, और लस्ट होता है जब आप किसी को अपने सुख के लिए उपयोग करना चाहते हैं। और माया इतनी खतरनाक है कि हमको लस्ट को लव दिखाती है। जैसे हम अपने शरीर को शरीर समझते हैं, ये शरीर नहीं है, ये खून हड्डी का बना हुआ एक ढांचा है। लेकिन हम इसको, अगर मैं आपको सत्य दिखा दूं, आपको शॉक हो जाएगा। हम इस चीज को अपने मन में कभी नहीं रहते, ये खून हड्डी का ढांचा है। कह रहे, कभी किसी का शरीर फट जाता तो हम लोग बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज हम एक भ्रम में जीना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शरीर नहीं है। ये एक भौतिक ढांचा है जो आध्यात्मिक शरीर को कवर करके रखा है। लेकिन हम अभी भी इस भ्रम में हैं कि आध्यात्मिक शरीर है, इसलिए कभी कट गया, फट गया, मर गया, हम लोग उसको विश्वास नहीं कर पाते, बिकॉज हम भ्रम में हैं और भ्रम में रहना चाहते हैं।
अगर कोई कट गया तो भाई भ्रम, जैसे आपके कभी कभी दुकान में जाते हैं ना, वहाँ पे कठपुतली तरह रखा लगा के रखते हैं ना, और साड़ी आड़ी पहना के, है ना। कभी कभी बेवकूफ़ी में हम सोच सकते हैं वो जिंदा है। जैसे हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद का मूर्ति है, वो तो आध्यात्मिक रूप से जिंदा है, लेकिन कुछ लोग आते हैं तो आचार्य ये बोलेंगे कब, है ना। कुछ लोग देखते हैं क्योंकि इतना सुंदर विग्रह है ना, तो दुकान में भी जो होता है उतना खर्च नहीं करते, वो सस्ते का बना होता है पुतला। लेकिन कुछ लोग बनाते हैं बिल्कुल आप पता नहीं कर सकते, है ना। बड़े बड़े लोगों का बनाते हैं वो लोग, बिल्कुल सामने खड़ा होकर पता नहीं कर सकते कौन सा जिंदा है ना, इतना ऐसा डुप्लीकेट बनाते हैं। तो सपोज ऐसे बैठे थे, वो सोच रहे थे असली स्त्री है, थोड़ा आकर्षित हो रहे थे, और कुछ देर बाद में पूछा करके दिखाऊँ वो तो स्प्रिंग और डंडे लगे हुए हैं, वो तो पुतला है, आपको शौक होगा, है ना। तो शरीर, क्योंकि उसी तरह हम भी आध्यात्मिक जगत के वासी हैं, हमको आध्यात्मिक शरीर से रिश्ता है। भौतिक शरीर तो कठपुतली है, वो दिखाया जाए तो आपको सत्य में आ जाना चाहिए, लेकिन हम भ्रम से निकलना नहीं चाहते। कभी कभी कोई नींद में सो रहा होता है, ठीक है, कोई अच्छा हो रहा होता है, आप कहीं गए, आपको बड़ा यश मिल रहा है, धन मिल रहा है, बड़ा अच्छा सपना आ रहा है, कोई उठाता तो यार मैं वापस जाता हूँ सपने में, मज़ा आ रहा है ना। तो हम भी भ्रम की दुनिया में जीना चाहते हैं, हमको उठाना भी चाहे, कोई उठाना नहीं चाहता। जैसे कोई रात को सो रहा है, ये भी एग्जाम्पल देते हैं हम लेवल 1 में, और रात को चिल्ला रहा है शेर 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 और रो रहा है ना, तो आपको क्या पता, क्या करोगे उसको, उठा दोगे ना। जब उड़ जाएगा शेर भी, क्या है वो, कल्पना है ना उसका शेर तो, है ना। जब उड़ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अर्जुन भी जैसे भगवत गीता में रोते रहते हैं, मेरे दादाजी, मेरे गुरु, मेरे रिश्तेदार, रो रहे होते हैं। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, अरे रो नहीं उसके। अब जैसे कोई सपने में रो रहा है कि शेर आ गया, शेर आ गया, दो चीज कर सकते हो। बेस्ट है उसको उठा दो, थोड़ा सिर में पानी फेंको, वो सारा उसका तमाशा खत्म हो जाएगा। कर ये रह गया, उसको उठा दो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अद्भुत चीज उसके सपने में घुस जाते हैं और शेर को भगाने की कोशिश करते हैं। तो हम ज्यादातर लोग जब किसी को कष्ट में देखते हैं तो उसी कष्ट में ही घुस जाते हैं, नहीं नहीं रो नहीं। कृष्ण जी ये सब तमाशा, वो रोता और रो रहा होता है, कृपया तम तथा कृपया विश्रम अश्रुपूर्णाक्ष लेक्षणम। पहला श्लोक देखो दूसरे चैप्टर में, पहले चैप्टर में बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, दूसरे चैप्टर के पहले श्लोक में आंसू बह रहे होते हैं, अश्रुपूर्णाक्ष लेक्षणम, आंसू बह रहे होते, नहीं मेरे दादाजी, मेरे रिश्तेदार, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तो कृष्ण जी उसके जो ये आंसू हैं, इसके आप देखो, उसके लिए उसको कभी भी सिंपैथी नहीं देते, क्योंकि मूर्खता के आंसू की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। मूर्ख रो रहा है, क्या है, मूर्ख हंस रहा है, आप कुछ उसमें इंटरेस्ट दिखाते हो। पागल खाने में जाओ, सब हंस रहे होते हैं या बैठे रो रहे होते हैं, आप उसको कोई वैल्यू देते हो क्या? यार रो, कोई वैल्यू नहीं है उसका, पागल होके रो रहा है ना। कभी कोई असली में रो रहा होता है, उसको हम बात करते हैं। पागल रो रहा होता है, पागल हंसता है, आप इंटरेस्ट देते हो उसमें? नहीं, है ना। पागल आदमी भी मुस्कुराता है और भगवान भी मुस्कुराते हैं, हमको भगवान की मुस्कुराहट में इंटरेस्ट है, पागल आदमी की मुस्कुराहट में क्या करना, वो तो पागल है। आजकल लोग बोलते हैं फेसबुक में मुस्कुराओ ना, एक दूसरे से मुस्कुराओ। अरे बाबा, पागल की मुस्कुराने का क्या करने का, पागल खाना है क्या, बनाना है क्या हमको, है ना। हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मुस्कुराएंगे, है ना। तो शोक मोह का भय, ये तीन चीज का हमको प्रॉब्लम है, हमको सब भय से भरे हुए। भय बहुत बड़ा दर्द होता है, मोह से भरे, इल्यूजन से भरे हैं, शोक मोह। अर्जुन भी इस तरह भरा। तो अर्जुन ने, कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को कृष्ण कथा सुनाई, कृष्ण कथा सुन के वो मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोहम स्मृतिम लब्धवा, अंत में गीता के बोलता है कृष्ण जी मेरा सारा मोह नष्ट कर दिया आपने, मेरी मेमोरी आ गई, अब मैं खुश हूँ। करिष्ये वचनम तवा, आपके आदेशों का पालन करूंगा। तो कृष्ण जी ने क्या किया, उसको लिफ्ट किया कॉन्शियस को। इसलिए भी लोग दुनिया में सब लोग रो पीट रहे हैं, तो इसमें बोला है लोगों को भागवत सुनने को बोलो, और भागवत सुनेगा आदमी, आध्यात्मिक ज्ञान सुन के उसके हृदय से इस दुनिया के जो तरह तरह के अटैचमेंट है टूट जाएंगे, और असली में खुश हो जाएगा, दूसरे को खुश भी करेगा। अब आप देखो घर में भी 4-5 लोग होते हैं किसी भी घर में, तब भी शांति नहीं। अरे सब तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन एक कमजोरी है,
वो मेटेरियली अटैच्ड है, उनके तरह तरह की भोग की इच्छाओं से हृदय अटैच्ड होता है। सत्वगुण की जगह आदमी रजोगुण या तमोगुण में होता है ना। देखिए, सात्विक आदमी कभी किसी को दर्द नहीं देता, खुद खुश है, दूसरे को भी खुशी देगा। जिसके हृदय में दर्द होगा तो दर्द बांटता है, जिसके हृदय में खुशी होती है तो खुशी बांटता है। सच है, ठीक है, लॉजिकल है। जब खुशी से भरा है उस आदमी को पास जाने का मन करता है, वो खुशी करता है, आपको भी खुश करता है। करेक्ट। जो दुखी आदमी है उसके पास हम लोग खुद नहीं जाते यार, अपने ही कितने कष्ट हैं, उसके पास जाएंगे और रोएगा और दुखी करेगा, है ना। कोई दुखी नहीं होना चाहता, ना दुखी आदमी को मिलना चाहता। ठीक है, ये भी ठीक है। सत्वगुण में आदमी खुश रहता है, क्योंकि वो सत्वगुण के आदमी की ऐसी क्या गुण है कि खुश रहता है। उसका शरीर और मन में कभी भी पाप कर्म के बारे में नहीं सोचता। तामसिक आदमी पाप कर्म के बारे में सोचता है, पाप कर्म करता भी है, इसलिए उसको तामसिक बोलते हैं, पागल। सात्विक आदमी ना तो पाप कर्म करता है ना उसके बारे में सोचता है, हमेशा खुश रहता है। राजसिक आदमी बीच में आता है, वो पाप करता नहीं लेकिन सोचता रहता है, तो इसलिए उसका मन द्वंद्व में रहता है, हमेशा वो बीच में बैठा है। एक हो गया तामसिक आदमी। तामसिक आदमी पाप कर्म कर रहा है, जैसे दारू पी रहा है, 4 हमारे नियम है तोड़ रहा है। 4 नियम क्या है? मांस खाना, नशा करना, जुआ करना और पराई स्त्री से बिना शादी के स्त्री से संपर्क करना। ये 4 पाप कर्म बोले जाते हैं। क्या है? किसी भी धर्म में पाप कर्म है। कुछ धर्म में तो अगर आप बिना शादी की लड़की से रिश्ता बनाओगे, पब्लिक में गाड़ के वहीं मार देते हैं, पत्थर फेंक के, है ना। कुछ देशों में ऐसा है नहीं है। नशा भी मना है, नशा नहीं कर सकते आप उधर, नहीं मिलेगी दारू की दुकान आपको, सिगरेट की दुकान नहीं मिलती, है ना कुछ देशों में ऐसा। और आप बिना शादी के किसी स्त्री से संपर्क करो, आपको पब्लिक में लोग पत्थर मार के मार दें, पूरा समाज इकट्ठा होकर। करते नहीं करते, नियम ही ऐसा है। एक्चुअली इसकी वजह से शांति हो जाती है समाज में। ये 4 नियम अगर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व हो जाएं, शांति मिल जाती है, सब पूरा समाज शांत हो जाएगा, क्योंकि आदमी तमोगुण से सत्वगुण में आ जाएगा, शांति मिलेगी। लेकिन उन देशों में एक प्रॉब्लम है, मांस का परहेज नहीं है, मांस खाते हैं, उसकी वजह से वो लोग फिसल जाते हैं। फिर वो मांस सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि कितना दर्द आपने दे दिया किसी को, इसलिए फिर जैसे वो मांस खाते हैं वैसे उनको भी खा जाते हैं लोग। शूटिंग, टेररिज्म, है ना, शांति नहीं, जो भी है। तो सत्वगुण में आदमी पाप ना करता है ना सोचता है। तमोगुण में आदमी पाप के बारे में सोचता है, करता भी है, पागल है। रजोगुण में आदमी बीच में फंसा है, पाप करता नहीं है लेकिन सोचता रहता है, ये 4 नियम तोड़ने के बारे में सोचता रहता है। इसकी वजह से उसका मन शांति भंग हो जाती है, मन की शांति भंग हो जाती है। ठीक है ना। तो जैसे आपको कोई दोस्त है, अगर वो सात्विक है ना, आपको कभी दर्द नहीं देगा। लेकिन अगर रासिक आदमी हमेशा डिस्टर्ब रहता है, और तामसिक आदमी पागल हो जाता है। ठीक है ना। इतना ही नहीं, सात्विक, रासिक, तामसिक आदमी के खाने भी अलग होते हैं। सात्विक आदमी का खाना हमेशा वेजिटेरियन खाना खाता है। रासिक आदमी 2 किलो मिर्चा डाल के खाता है, आंध्रा के लोगों की तरह, इसलिए नेक्सलाइट बहुत है उधर, है ना, आंध्रा में, क्योंकि वो मिर्ची मसाला थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं। अगर आंध्रा रेस्टोरेंट में चले गए तो कान से धुआं निकलता है। मेरे कॉलेज में थे कोई दोस्त लोग, वो जो पिकल होता है ना, ये सब, वो उसको सब्जी की तरह डाल देते थे खाने में, वो खाने उत्साह। उनको थोड़ा रासिक खाने से आपका मन भी डिस्टर्ब होता है, और आपका आप ले लो तामसिक खाना, दारू, मीट खाता है। आज सात्विक आदमी के सामने तामसिक खाना रख दो, वो उठ के चला जाएगा। और तामसिक आदमी के सामने सात्विक खाना रख दो, क्या है मिट्टी, उसको मजा नहीं आएगा। तो ये आपको म्यूजिक ले लो, सात्विक आदमी क्लासिकल म्यूजिक सुनता है, भजन सुनता है। रासिक आदमी प्यार हो गया, मोहब्बत क्या हो गया, छोड़ गए, मिल गए, या आइदर मिल गए या छोड़ गए, वो सारे फिल्म सॉन्ग आपके रासिक ही होते हैं। रासिक लोग रासिक के लिए, उसको अगर है वो सात्विक, अगर आप देखो
कॉलेज में, हमारे किसी भी कॉलेज में स्पिक मैके करके एक ग्रुप है, 2 लोग भी नहीं होते उधर, और उसमें बैठे होते इतना अच्छा वो फेमस सिंगर क्योंकि रासिक तामसिक आदमी क्या करेगा, तो बोर हो जाता क्या हो रहा है सात्विक आदमी को बड़ा अच्छा लगा, आनंद आता है उसे। रासिक आदमी को प्यार हो गया। एक बारी मैं कॉलेज में गया था, तो कॉलेज में क्या करते हैं, कंपलसरी करके वो जो क्लासिकल प्रोग्राम या जो मेरा जब क्लास लेता था, कंपलसरी करके कॉलेज ठूस करके भरता था लोगों को, लोग भागना चाहते थे उससे। और तो मैंने देखा क्लासिकल का भी जो प्रोग्राम होगा कंपलसरी लोग लाते थे, नहीं तो स्टूडेंट्स को किसी को इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन कॉलेज में होता है ना, प्लेबैक सिंगर होते हैं जो आपके फिल्म के गाने गाते हैं, तो वो आया था वहाँ पे, वो फिल्म के गाने गा रहे थे, पूरा कॉलेज, पड़ोसी लोग भी आ गए थे, मतलब आप घुस भी नहीं सकते उधर, ऐसी भीड़। क्योंकि इससे दिखता है क्या खाना आदमी खाता है, कैसा आदमी को म्यूजिक पसंद है। और बताओ कोई चीज़ जिससे आपको पता चलता है कौन, क्या चीज़? खाने से, म्यूजिक से, और हाँ बोलो संगीता माता जी, किस चीज़ से आपको और आदमी के गुण का आभास हो? ऑन है, आप तो बोल सकते हैं ना। हाँ शर्मा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम किस समय सोते हैं और किस समय उठते हैं, उससे भी आइडिया लग सकता है। ठीक है, सात्विक आदमी जो है बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीता है, हर दिन सेम समय सोता है, सेम समय उठता है, सेम समय ये हमारा जो शरीर है ना, एक मशीन की तरह है। अगर इसको रिदम में चलोगे ना, टाइम से सोओगे, टाइम से खाओगे, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और अगर आप कभी सोए नहीं, कभी सोए, कभी खाए नहीं, कभी खाए, अल्सर हो जाएंगे। नहीं, अभी मेरे को कोई फ़ोन किया था, खाना सोना सब इरेगुलर था, अल्सर हो गया। हाँ हो गई है ना, शरीर तो खराब, कोई भी गाड़ी खराब हो जाएगी ना। अगर उसको ढंग से तेल डालोगे, ढंग से चलाओगे, तो गाड़ी चलती रहेगी। किसी दिन 20 घंटे कभी नहीं चला, ये सब करोगे ऐसे, कभी तेल डाला नहीं डाला, तो गाड़ी खराब हो जाती है ना। तो शरीर भी ऐसी है। तो सात्विक आदमी ज़्यादा जीता है, उसका जीवन ज़्यादा रहता है, शांत ना। कुछ लोग ऐसे एनालाइज करते हैं हमारा जीवन का काल तो फिक्स होता है, लेकिन जो सात्विक आदमी है वो पूरा जीवन जीता है जो आपका फिक्स है। राजसिक तामसिक आदमी सुसाइड की तरह उसको पहले ही मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं शरीर। श्री श्री राधा गोविंद की जय। ये अलग अलग तरह से एनालिसिस होता रहता है। ओके, तो उसका बुद्धि भी, उसका डिटेल भगवद गीता में बहुत बड़ा लिस्ट दिया है, उसका बुद्धि, उसका यज्ञ, उसका चैरिटी, आपके 17वें 18वें चैप्टर में हर चीज़ को डिवाइड कर दिया है सात्विक राजसिक तामसिक से। ओके ओके, तो सात्विक आदमी मूलतः खुश रहता है, ठीक है ना, लॉजिक भी समझ आएगा, वो कभी भी आपको दर्द नहीं देगा। लेकिन तामसिक आदमी और राजसिक आदमी आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। क्योंकि लोग, इसलिए 4 कर्म जो बोले गए, पाप कर्म, जब परीक्षित महाराज, आप सबको मालूम है, परीक्षित महाराज को ज्ञात हुआ कि कली पुरुष आ गया है, तो अपनी तलवार लेके उसको सामने उनको फेस किया और उसको मृत्यु दंड दिया, क्योंकि वो एक गाय को मार रहा था। तो वो तो एक्चुअली में राजा नहीं था, राजा के ड्रेस में था, परीक्षित महाराज के पैर पकड़ लिया। अब राजा कभी भी उसको नहीं मारता जो पैर पकड़ते, छोड़ देता। तो उन्होंने तलवार वापस, उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता था पृथ्वी में, वो तो पांडवों ने ट्रेन किया ना उसको, चक्रवर्ती था। तो उसने बोला ठीक है भाई, ये तो बच गया। तो वो बोला कली पुरुष आपके आश्रय दीजिए, मेरे को जगह दीजिए रहने का, आश्रय शरण दीजिए। बोला देख तू मेरे देश से बाहर निकल जा, मैं तेरी जान छोड़ देगा। बोला पूरी पृथ्वी में तो राज कर रहा है, बाहर का जाएगा। बोला ठीक, ऐसी जगह जहाँ पे लोग दारू पीते हैं, जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ पे लोग मांस खाते हैं और बिना शादी लड़की से संपर्क करते हैं, ऐसी जगह किसी भी धर्म में ये 4 पाप है। तो उसने बोला ठीक है, पूरा पृथ्वी ढूंढ के आ गया, ऐसी जगह नहीं मिली। ये होता राजा,
नहीं मिली उसको जगह। अच्छा राज्य होता मतलब ये आपका ये नहीं, आजकल के आपके कर्नाटक का गवर्नमेंट को बोलो दारू के अड्डे बंद कर दो, गवर्नमेंट बंद हो जाएगी। वैसे ही कंगाल है, बंद हो जाएगी। क्यों? उनका रेवेन्यू वो मेन तो वही है। एक्चुअली जो आपका वो केमिकल होता है दारू में वो बहुत सस्ता होता है ना, इथेनॉल एमेथेनॉल जो बहुत सस्ता होता है। उसमें ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा टैक्स मारते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस दारू का ही है। आपका ताड़ी है या जो है, बहुत प्रॉफिट है उसमें, है ना। क्या है, चावल को पानी में डाला बन जाता है ना, फिल्टर किया रेडी, और उसका प्रॉफिट बहुत है। 2 रुपये का बनता है, 200 का बिकता है, बहुत। इसलिए सारा लोग इसमें लगे रहते हैं। गवर्नमेंट भी इसी में लगी हुई है। वो 100,000 रुपये का भी कर देगी तब भी लोग खरीदेंगे। एक बार नशा आ गया आदमी फंस जाता है। तो एनीवे, तो अच्छा राजा जो है वो समझता है कि इस चीज़ को अलाउ करने से समाज में नष्ट होगा, तो अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये 4 नियम अगर हम किसी देश में अगर स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे तो देश शांत हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे। ये जड़ है, सारी प्रॉब्लम की जड़ ये 4 नियम। आप किसी पुलिसमैन के पास जाइए, बोलो क्राइम को बंद करना है, बोलो ये 4 चीज़ कम करो। लड़की के चक्कर में सारे मर्डर होते हैं, होता नहीं। इस लड़की से तूने बात क्यों की, हमारे इलाके में नहीं आने का, उसको मार देते हैं लोग। नहीं, लड़की के चक्कर में। आप देखो महाभारत रामायण भी लड़की के चक्कर में हुई है ना। वो सीता को उठा ले गया रावण, मारा। वो द्रौपदी को उन्होंने इंसल्ट किया, मरे, है ना। वो पाप कर्म गड़बड़, दोनों पाप कर्म करने वाले थे, है ना, इसलिए उनको रोका गया। ओके, तो पहले क्या समझे हम, तो किसी पुलिस वाला भी बोलेगा अगर ये लड़की के चक्कर में क्राइम होते हैं, है ना। दूसरा, दारू में, नशे में आके लोग अपना कंट्रोल छू रहे, ठीक है। और जुआ, जुआ जुआ ही नहीं, क्विक मनी बिजनेस को भी जुआ बोलते हैं, बेटिंग, है ना। ये सारे जो इवन रियल एस्टेट में कुछ हद तक जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी क्विक मनी बिजनेस है। एक उंगली दिखाने की, ये जमीन बस। अब वो उस अगर जमीन तुमने खरीद ली 2% मांगने आ जाएगा, उंगली दिखाने की। पेपर दे ना दे, बस ये जमीन चाहिए, हाँ ये, बस। फिर आगे पीछे आगे सिर खाता आपका, मेरे को देने का, मेरे को देने का, मेरे को। मैं तो पूरा मैंग्रोव देख चुका था। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने गवर्नमेंट से ज़मीन ली, क्योंकि कोई और लेता 25-20 साल में किसी से तो देखी थी मैंने, क्योंकि 20 मेरे को ये याद भी नहीं किसी ने कौन सा दिखाया, पूरा देखता ही रहा 20 साल, तो बच गया। क्योंकि इधर तो भाई गवर्नमेंट का है, अब तो किसी को दिखाने का इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो क्विक मनी बिजनेस में भी आदमी पागल हो जाता है, बहुत झूठ बोलता है। जब हमने पिछली बारी घर लिया था मैंगलोर में, वो एरिया क्रिश्चियन एरिया था, आप सबको मालूम है ना, है नहीं। तो जब ब्रोकर को मैंने पूछा था कि ये एरिया सब हिंदू एरिया, क्रिश्चियन, सारे हिंदू हैं इधर, क्योंकि उसको 2 मिनट में वो झूठ बोल के उसको 2 महीने का रेंट मिल जाता है ना, मेरे से और लैंडलॉर्ड से, उसको 50,000 मिल जाते हैं 2 मिनट में। तो उसके लालच में आदमी झूठ बोल देता है, करेक्ट। इसलिए जुए में भी लोग गड़बड़ करते हैं। जैसे आपका शक्कू किसने किया था, शक्कू, जो भी है, महाभारत में भी जुए में गड़बड़ थी, है ना। वो डाइस गड़बड़ डाइस थी, वो नॉर्मल डाइस नहीं थी। तो इस तरह लोग क्विक मनी बिजनेस में आदमी नियम छोड़ देता है, पागल हो जाता है। उससे भी जुआ इसलिए कर लेता है। जुए का भी बहुत एनालिसिस किया जाता है कि देखो, दारू का किसी एडिक्शन पकड़ना है तो आप उसका ब्लड टेस्ट कर सकते हो, निकल जाएगा। कोई आपको अगर इल्ज़ाम दे कि तुम दारू पीते हो, तो बोले कि ब्लड टेस्ट देता हूँ, पकड़ा जाएगा, है ना। जो सांस से पकड़ा जाता है ना, दारू, ब्लड से, ड्रग्स खाते हो, पकड़ा जाएगा, ब्लड टेस्ट में पकड़ा जाएगा, आप उसको पकड़ सकते हो। लेकिन ये जुए का पकड़ोगे कैसे, ब्लड टेस्ट में नहीं निकलेगा ना, ये साइकोलॉजिकल है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आदमी जुआ खेल रहा है, लोग उसके रिश्तेदार बोलते हैं यार जुआ बंद कर दे, क्योंकि तेरा पूरा घर तूने बेच दिया, पागल हो गया है तो क्या। तो आदमी बोलता है ठीक है, मैं तो जुआ इसलिए खेल रहा हूँ जो खोया उसको पाने के लिए। तो बोलता है जी कितना खोया, तो 2 लाख रुपए खोया, मैं देता है। तो कभी कोई उसका भाई या उसकी माँ उसको 2 लाख रुपए देता, अब तो जुए में नहीं पड़ना, लेकिन वो नशा है,
जब पूरी जिंदगी वो सेकंड में होती है ना, एक किक मिलती है उसको, फिर वो उसको उसका नशा हो जाता है ना। उसका पैसा भी वापस कर दो नहीं छोड़ेगा वो, एक वो नशा की तरह, वो भी एडिक्शन है। तो इसी तरह ये, क्योंकि समाज में लोग शांत नहीं है, इस तरह बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, इसकी तरह वो दुखी रहते हैं। शोक मोह भया, शोक मोह भया, ये तीनों चीज़ों से दर्द अपने हृदय में लाएं और दर्द देते रहते हैं दूसरों को। तो समाज को शांत करने के लिए ये बहुत अच्छा है कि हरि नाम का जाप करें और भागवत सुनें। आप खुद ये देखते होंगे, जब मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की आरती देखते हैं, थोड़ा कीर्तन सुनते हैं, ये मन में जो इल्यूजन है ना, जो काटता रहता है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम, वेग वेग मतलब हरासमेंट जो है थोड़ा शांत हो जाता है, फिर थोड़ा मन शांत हो गया कुछ अच्छा चीज़ सोच सकता है ना। जैसे बहुत लोग, मेरे को याद है, हम मंडे को एग्ज़ाम होता था, फ्राइडे को हमारा कीर्तन रहता था कॉलेज में, सारे बच्चे आते थे। मैंने कहा तुम्हारे एग्ज़ाम है ना, पढ़ाई करो ना। सर पढ़ नहीं पा रहे, तो क्या सर ये थोड़ा कीर्तन सुनते हैं ना, थोड़ा मन शांत होता है, फिर जाके पढ़ेंगे पूरी रात, है ना। तो लोगों को थोड़ा शांति लगती है इससे, सच है ना, इसीलिए तो लोग मंदिर जाते हैं। हमारी इच्छा है कि अब तो अब आइए लोग, क्योंकि अभी भी मेरे को तो बहुत रिक्वायरमेंट है। इतना बड़ा मंदिर चलाने के लिए हम लोग नहीं होगा, 10 लोग से क्या चलेगा। हम तो खाली कभी मिलने आओगे, नाम निष्ठा प्रभु किधर हैं, प्रभु आरती कर रहे हैं, वो मेरे को तो कुकिंग नहीं आता है, लेकिन बाकी लोग तो सबको कुकिंग आता है, वो किधर है, प्रभु जी राजभोग बना रहे हैं, 18 आइटम बनाने होते हैं, उधर हैं वो 4 लोग उधर ही अंदर। तो लोग, इतने लोगों को मिलेगा कौन, तो पता नहीं। अब लोग तो चलो, एक तो मंदिर बनाना चैलेंज है, दूसरा चैलेंज है कि इतने लोग चाहिए मंदिर को चलाने के लिए। मंदिर तो छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा बन गया है ना। एटलीस्ट 200-300 लोग चाहिए इसको संभालने के लिए, है ना। और हम खुले 10, तो कैसे होगा। एनीवे, तो शोक मोह भया, तो लोग मंदिर क्यों आते हैं, शोक मोह भया से मुक्त होने के लिए, है ना। दुखी हैं, कोई चीज़ दुख हो गया, मोह इल्यूशन से मन तड़प रहा है, भय किस चीज़ का, संकट का भय है, तो ये सब से मुक्त होने के लिए लोग भगवान के आश्रम में आते हैं। और हरि नाम के जाप से एक चीज, दूसरे भागवत सुनने से धीरे धीरे वो लोग इस चीज से मुक्त हो जाएंगे। नित्यम भागवत सेवया, ये ऐसा नहीं कि एक दिन साल में जाके सुन लिया, नहीं, नित्यम भागवत सेवया, धीरे धीरे। क्योंकि क्या है, ये जो भगवान की भक्ति आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। जैसे आप सोचो, आपने 20 साल पहले आपका कोई दोस्त था, बचपन की याद करो, ठीक है, और मैं आपको बताऊं उसका नाम, वो मुत्तू था ना, मुत्तू, हाँ 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 हाँ, 2 मिनट, याद आ गया, होगा नहीं, याद आएगा ना। हो गया 10 साल हो गया, आप अमेरिका चले गए, सभी अच्छे से गल्फ चले गए, 20 साल बाद वापस आए, याद है मुत्तू था, हाँ 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 हाँ। तो वही हमारे साथ हो रहा है, हम इम्पोज नहीं कर रहे। बहुत लोग बोलते हैं तुम अमेरिका गए, रशिया गए, उनका तो अपना भगवान है, तुम क्या कर रहे, अरे छोड़ो, हम वो सब नहीं कर रहे। हम किसी के मन में कृष्णा नहीं घुसा रहे, ऑलरेडी है, हम उठा रहे हैं बस उसको। हाँ 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 हाँ, वही हो रहा है एक्चुअली। तो कीर्तन होता है, क्यों खुशी लगता है, बिकॉज हृदय में भक्ति है, थोड़ी खुलने शुरू होती है, रेजोनेट होता है, अंदर से और बाहर से भी मिल रहा है, छुपा हुआ है। अभी उसके चारों बादलों से आप सूर्य को कवर कर देंगे, जब बादल निकल जाएंगे तो सूरज की रोशनी बाहर आ जाती है। तो सूरज की रोशनी क्या छुपी थी, हाँ, बादलों से, बादल निकाल रहे। तो कीर्तन से क्या होता है, जो हृदय के चारों तरफ जो ये अंधकार बैठा है ना, वो निकल जाता है। जैसे अर्जुन नहीं बोल रहा था मेरे रिश्तेदार, मेरे पिताजी, ये सब, अरे कृष्ण ने बोला पागल आदमी रो रहा है, पागल के आंसू, एक बार ही अर्जुन रो नहीं, बोला ही नहीं। पागल के आंसू को कौन बोलता है, कृष्ण जी बोलते हैं अनार्जुष्टम, तो एक अनसिविलाइज आदमी की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, अकीर्ति करो अर्जुना। ऐसी चीजों से अपयश मिलता है, यश नहीं। ऐसे आंसू से यश नहीं मिलेगा, अपयश मिलता, लोग हंसेंगे, है ना। एक टेररिस्ट है, उसको पिटाई करना है, बोल रहे पकड़ो उसको, बांधो, वो तो मेरा रिश्तेदार है, अरे बकवास, पकड़ उसको, पागल हो गया, उसको पकड़, है ना। तो अर्जुन भी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा था, अरे पकड़ उन सबको, पिटाई, दुष्ट लोग हैं, इनको दंड देना जरूरी है ना। क्षत्रिय के वेश में आप दंड देने से रुक गए, ये मोह है, ये शोक है, ये इल्यूजन है, पागलपन है।
तो भगवत गीता बोलोगी अर्जुन को निकालने के लिए, दुष्ट लोगों को दंड देना चाहिए ना। आप पुलिसमैन हैं, ठीक है ना, और कोई आदमी किसी का बच्चा अपना गाड़ी में रख के भाग रहा है, स्कूटर में रख के भाग रहा है, और आप पुलिस वाले हैं, तो हम चिल्लाए बचाओ, अरे नहीं मेरा रिश्तेदार है, अरे मार उसको, दुष्ट आदमी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, क्या करना है। पुलिस वाले को डंडा उठाने की जरूरत होनी चाहिए। अभी आओ तो ना, कितने बेरहमी से चेन खींच के भाग जाते हैं आजकल, और आप पुलिस वाले आपने देखा और उसको आप डंडे नहीं मार रहे, 10 डंडे सिर में मारने चाहिए। कभी कभी लोग मर जाते हैं उसके चक्कर में, है ना। नहीं, मैंगलोर में थोड़ा कम है शुरू हो गया, लेकिन बाकी जगह तो बहुत बुरा हाल है, हर दिन 10 चेन खींचती है। तो क्या करने का, पुलिस वाले आपने देखा, आप डंडे मारने से डर रहे हो, तो दुर्योधन ने कैसे काम किए थे, डंडे मारने से डर क्यों, मारो उसको डंडे, है ना, दुष्ट आदमी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हमेशा क्षत्रिय चाहिए। जो आदमी आइडियल आदमी सोचता है क्यों युद्ध की जरूरत है, अरे बाबा हमेशा कुछ लोग हैं जो तमोगुण में चले जाते हैं, तमोगुण में खाली डंडा काम करता है, कुछ लॉजिक नहीं काम करता। जो आदमी दारू पी रहा है उसको थप्पड़ ही मारना पड़ता, वो नहीं रुकेगा, पागल हो गया, है ना, समझ रहे ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपके पीछे एक जानवर चल रहा है, कुत्ता आपका पैर काटने के लिए लगा, आपको डराते ही हो ना रोकने के लिए, है ना, अरे नहीं तो पीछे वो तो भौंकेगा। तो कभी कभी चाहिए होता है इस तरह। तो भागवतम और गीता का ज्ञान इतना सुंदर है, इससे आदमी मेटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाता है और उसका शोक मोह भय नष्ट हो जाता है। तो यही भागवत की महिमा है। लेकिन नित्यम भागवत सेवया, इसलिए हम बोलते हैं ना आप हरि नाम का जाप करो। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं इसके चैप्टर में, क्या आर्ग्यूमेंट है कि जब आप सोते हैं आपकी आंखें बंद होती हैं, उसमें कोई आगे नाचे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ अच्छा स्मेल लेके आए वो भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। बेस्ट क्या रहता है, उसका नाम पुकारो, उड़ जाएगा, है ना, यही तो करते हैं ना, आवाज करते हैं उड़ जाता है। तो उसी तरह भौतिक नींद से आप उठते हैं किसी आवाज से, आध्यात्मिक नींद से भी आप शब्द से ही उठोगे। जैसे भौतिक इंद्रियों में आपके कान सतर्क रहते हैं, कोई डेंजर हो गया, कोई झटका कहीं पड़ा, आप कूद पड़ते हैं ना, करेक्ट, आंखें बंद रहती हैं लेकिन कान सतर्क रहते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक रूप में जागृति होने के लिए आपको आध्यात्मिक कानों को उठाना है हरि नाम से। इसलिए हम हरि नाम का जाप करते हैं। कभी कभी कोई लोग 16 माला इसलिए नहीं जप करते तो उनको सोचते हो गया ना, एक माला जप के लिए थोड़ी शांति मिल गई। वो आध्यात्मिक रूप से जागना नहीं चाहते, वो शुद्ध भक्त नहीं बनना चाहते, एक कनिष्ठ भक्ति रहना चाहते, तो उसमें लोग सीरियसली जप नहीं करते। जो आदमी ये समझ जाता है कि माया का बड़ा स्कैम है इस दुनिया में, हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इंद्रिय भोग के लिए भगाया जा रहा है मेरे को, अरे कुत्ते कुतिया के पीछे भागता है, ऐसे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, है ना। देखते हैं ना कुत्ते कुतिया रोड में भागते रहते हैं। अभी आपका मौसम हो गया, जैसे अच्छी बारिश होती है, ऐसा नाच होता चारों तरफ दिखता है। हमारे जीवन उस जीवन में फ़र्क क्या है। उसके बाद सोचता है यार मनुष्य का जीवन इसी कुत्ते कुतिया के बिजनेस में ही रहेगा, कुछ और कर सकता हूँ। जब आदमी को समझ आता है कि एक्चुअली माया मेरे को नचा रही है, तो उसको होता है मैं किस तरह इस माया से बाहर निकलूँ। तो फिर आदमी ध्यान से जप करता है, नहीं तो एक जप करता है सेरेमोनियली, अरे उसको कुछ नहीं। जप का इफेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट इतना इफेक्ट होना चाहिए, बहुत बारी मैंने बोला है कि उस जप के समय से अगले दिन तक सत्वगुण में रहे। अभी कृष्ण भक्ति को तो, कृष्ण भक्ति की लहर तो आगे देखेंगे, वो तो बहुत आगे की बात है। एटलीस्ट आदमी को सत्वगुण में रहना चाहिए, इतना इफेक्ट। इसलिए जब का कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो। जैसे आप पूरे दिन देखोगे माया घुस जाती है, फिर इंद्रिय भोग की लालसा इधर में आ जाती है ना, तो शोक मोह भय ये चीज़ें आ जाती है, तो मतलब माया में घुस गए फिर से। तो अगले दिन जब को थोड़ा ध्यान से करो, डोज बढ़ा दो। 16 माला के आगे करने का तो समय नहीं मिलेगा आपको, अगर मिलता है तो करो, एटलीस्ट 16 माला को कॉन्सेंट्रेशन से करो। अब 2 घंटे से ज़्यादा कैसे दोगे जब के लिए, आपको ऑफिस भी जाना है, घर का भी काम है, तो 16 माला करते उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इतना इससे शक्तिशाली मंत्र नहीं है, इसलिए इसको महामंत्र बोला जाता है। इति षोडशक नाम नाम कली कल्मषनाशनम। कलयुग में भी जो आदमी फंसा हुआ है सारे मोह से मुक्त हो सकता है। इतनी नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे को पूरे वेद में इससे शक्तिशाली मंत्र नहीं दिखता। नाता परतरा, परा में इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है पूरे वेद में। तो ऐसा नहीं कि चलो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ, बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ और मंत्र ट्राई करूँ। ओम नमो नारायणाय, श्री कृष्णा नमः, अलग अलग तरह तरह के मंत्र दिखते हैं जगह जगह। तुम इस हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान से जप करो। इसमें तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है, इसी सिंपल मंत्र है, जप करो, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ा दो। आप देखना आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने से धीरे धीरे कुछ समय में आपको इफेक्ट दिखेगा। नित्यम भागवत सेवया, इल्यूशन निकल जाएगा। जैसे कभी कभी हम जब दवाई देते हैं एक दिन में ट्रीटमेंट नहीं होता। कुछ दवाई, बीमारी ऐसी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब 6 महीने लग जाते हैं बीमारी को शरीर से निकलने में। करेक्ट है ना? दवाई का 1 सेकंड में, लोग क्या है आजकल चमत्कार चाहते हैं, 1 सेकंड में मेरे को इफेक्ट हो जाए, समय लगेगा। तो ध्यान से, उत्साह से, कॉन्फिडेंस से, ये प्रोसेस वेद में दिया, कभी फेल नहीं होगा। और धैर्य, पेशेंस से हमको करने का। एक एग्जाम्पल है, शास्त्र में आप किसी पेड़ का बीज जमीन में डालते हैं, फल कल नहीं मिलता, 5 साल लगते हैं, है ना? और अब कोई स्त्री गर्भवती होती है, बच्चा 1 दिन में नहीं मिलता, 9 महीने वेट करना पड़ता है। उसी तरह जब भक्ति के मार्ग को हम स्वीकार करते हैं, थोड़ा धैर्य चाहिए। ये शास्त्र का बोनाफाइड प्रोसेस है। बहुत जल्दी ही हम शोक मोह भय से, जितना हम शोक मोह भय से निकल गए, उतना समझना मेरी प्रकृति हो रही है। अभी भी शूद्र की तरह, शूद्र का मतलब जो रोता रहता है तो बोला शूद्र, हमेशा दुखी रहता है, रोता रहता है। ब्राह्मण मतलब हमेशा मन उसका शांत और संतुष्ट और खुश रहता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, अभी हो जाएगा। आप थोड़ा प्रोसेस को चलाते रहिए, ठीक है? तो इसलिए जो भागवत का जो रास्ता है, इसका कंपेयर कोई और रास्ता नहीं है। और ये चीज दिख रही है, इसीलिए बोला जाए कि रेगुलर जो भागवत का श्रवण करेंगे बहुत जल्दी ही माया से मुक्त हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। सब लोग खुश हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर द, लगता है सुनते ही रहो, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। जब करते बहुत रहो। अच्छा क्लास था प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च प्रभु जी। कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत बाबा जल्दी आओ इधर। राधे राधे। लीला प्रभुपाद हरे की कृष्णा। जय। मैं तो 23 साल का था तब भगवान का सेवा में निकल गया। आप तो भाई जरा पोते की शादी हो जाए, जरा पोते के भी पोते देख लूं। जल्दी आओ, मैं तो अभी मंदिर को कैसे संभालूंगा उसका टेंशन में हो गया। मंदिर तो बन जाएगा, अभी हो गया बात, अभी टेंशन हो रही है लोग किधर हैं संभालने के लिए। यहाँ तो हमको करीब 10 पुजारी चाहिए, 10 कुक तो मिनिमम, 20 तो लोग, हम तो कुल 10 हैं। प्रभु जी सब कृष्णा करेंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बोल दिया आपने कृष्णा पे, तो वो भी ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अनंत कोटि